Welcome students of class 10th. I welcome you to my channel समझो केमिस्ट्री डिटेल में. Today again we are meeting in another video, and in this video also I will be solving the questions from the sample question paper, and I will be preparing you for facing the board exam 2021. So the first question I have written in the board. Let's see what is the question and let's solve this question. The question is, an element Z belongs to third period and group 17 of the periodic table. What is its valency? Justify your answer. Now as it is clearly said that the element belongs to third period and group 17 of the periodic table, modern periodic table. That means position of the element has been told to you. The element belongs to third period and group 17. Now you all know that the number of valence electrons present in any element of group 17 is 7. Group 17 elements are having 7 valence electrons in their valence shell. So this element, as it belongs to third period, so you are very well understanding that as it belongs to third period, so it has got 3 shells. First shell, second shell and third shell. That means K shell, L shell and M shell, and the number of electrons present in the M shell जो कि वैलेंस शेल है उसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. तो हमें इसका वैलेंसी कैलकुलेट करना है और हमें इसका वैलेंसी जो हम कैलकुलेट करके बताएंगे उसको जस्टिफाई भी करना है. तो जस्टिफाई हम कैसे करेंगे? जस्टिफाई हम इस तरह से करेंगे कि एज द एलिमेंट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड सो इट हैज गॉट 3 शेल्स, and as it belongs to group 17 in the periodic table, so it has got 7 valence electrons, because we all know that the number of valence electrons present in different groups, जैसे 13 से लेकर के 18 तक अगर आप जाओ तो ग्रुप 13 में you all know 3 valence electrons are there, and so 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6 and group 17 में 7 valence electrons are there. So let's write the electronic configuration of this element. It has got 3 shells, it belongs to third period and it is a member of group 17, so it has got 7 valence electrons. So this is the electronic configuration of element Z will be equal to what? K shell, L shell, M shell, 2, 8, 7. So this is the electronic configuration, and we also know how to calculate the valency of the elements which are present in group 15, 16 or 17. हमें just 8 से valence electrons को minus कर देना है, and if we do that we get the valency of the element. So valency of the element will be what? Valency of Z will be equal to 8 minus valence electrons, that is 8 minus 7, so it will be 1. So this is the solution of this question. This is a 1 mark question. This is a 1 mark question. Now let us solve the second question. The second question says, in the given reaction Na2CO3 plus XHCl producing 2NaCl plus CO2 plus H2O. What is the value of X? आपको X की वैल्यू पूछा है. द रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड. बैलेंसिंग करके हमें X की वैल्यू बताना है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. अब यहां पे अगर आप ये रिएक्शन में बैलेंसिंग करो Na2CO3 plus HCl producing 2NaCl plus CO2 plus H2O,
बस आपको यहाँ पे 2 लगाना है, then the reaction is balanced, you can see. As the reaction is balanced, so we can say that the value of x is equal to 2. So this question is also solved. So now I will take another question. Third question. One salt whose solution has pH more than 7 and one salt whose solution has pH less than 7. वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आपको एक सॉल्ट ऐसा एग्जाम्पल देने के लिए कहा जा रहा है जिसका सोल्यूशन का पीएच जो है इट इज ग्रेटर देन 7 एंड वन मोर सॉल्ट हुज सोल्यूशन हैज गॉट पीएच लेस देन 7. तो आपको पता है कि pH if it is greater than 7, that means the solution will be basic in nature, and if the pH of the solution is less than 7, that means the solution will be acidic in nature. Now हमें तब सॉल्ट ऐसा लेना है फर्स्ट केस में जहां पर pH जो है 7 से ज्यादा है, वहां पे सॉल्यूशन बेसिक होना चाहिए. एक्वा सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट शुड बी बेसिक इन नेचर. दैट मीन्स हमें ऐसा एक सॉल्ट लेना है जो कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन में बना है. आपको पता है कि सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस. एसिड एंड बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, सॉल्ट और वाटर बनते हैं. तो अगर सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन का पीएच 7 से ग्रेटर होगा, दैट मीन्स सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर. दैट मीन्स आपका जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन शुड बी प्रेजेंट व्हिच विल मेक द सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर. नाउ ऐसा एक सॉल्ट हम जो है लेना पड़ेगा, हमें ऐसा सॉल्ट लेना पड़ेगा जो कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन में बना है. तो इसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं Na2CO3 का. Na2CO3, K2CO3, Na3PO4, ये जो सॉल्ट्स हैं, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम फॉस्फेट, इस टाइप का जो सॉल्ट्स है ये जो है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के कॉम्बिनेशन में बना है. मैं आपको खोल के लिख करके दिखा रही हूं. और इनका एक्वा सॉल्यूशन में वाटर के साथ जब ये जो है कंबाइन करते हैं तब वो एसिड और बेस में कन्वर्ट होते हैं. और क्यों जो सॉल्यूशन है वो बेसिक होता है और उसका पीएच जो है 7 से ऊपर होता है, वो मैं आपको रिएक्शन लिख करके दिखा रही हूं. तो एग्जाम्पल और सच सॉल्ट आंसर में हम क्या लिखेंगे? pH more than 7 means the solution of the salt should be basic in nature. That is, the salt should be of strong base and weak acid. Examples: सोडियम कार्बोनेट आप ले सकते हो. साथ ही में और भी एग्जांपल्स मैं आपको लिख देती हूं. K2CO3, Na3PO4 are also salts of strong base and weak acid. तो इनमें से भी आप एग्जाम्पल जो है ले सकते हो.
तो हमें तो एक ही एग्जाम्पल लेना है, हमने Na2CO3 लिख दिया। तो Na2CO3 का जो सॉल्यूशन बेसिक बनेगा और उसका जो pH है 7 से ग्रेटर होगा, उसको आप जो है इस तरह से जस्टिफाई भी कर सकते हो। Na2CO3 प्लस वाटर, एक्वा सॉल्यूशन बना रहे हो आप, क्या बनेगा? NaOH प्लस H2CO3। अब ये जो H2CO3 है, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड एंड इट इज ए वीक एसिड। सो दिस इज ए वीक एसिड। सो वीक एसिड या तो वीक बेस जो है ये डिसोसिएट बहुत कम करते हैं, ऑलमोस्ट नहीं करते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग बेस है यहां पे, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, so it will produce Na plus ion and OH minus ion will dissociate completely in the solution, and in the solution there will be OH minus ions, and that's why the solution will be basic in nature, and this solution will have pH greater than 7. So now the next part of the question, a solution of a salt which has pH less than 7, that means it should be acidic in nature. The solution should be acidic in nature. अगर solution acidic होना है, that means now we have to take the example of a salt which is made up of strong acid and weak base. स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तभी जब हम सॉल्ट को एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे सॉल्ट का, तो वो जो सॉल्ट जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तब वो एसिड और बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। और एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है तो एसिड कंप्लीटली जो है डिसोसिएट होकर के H प्लस आयन प्रोड्यूस कर देगा, और जो बेस जो वीक है वो ऑलमोस्ट अनडिसोसिएटेड कंडीशन में रहेगा, एंड दैट्स हाउ द सॉल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर एंड इट्स pH विल बी लेस देन 7। सो ऐसा एक सॉल्ट का एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? अमोनियम क्लोराइड ले सकते हैं, अमोनियम नाइट्रेट ले सकते हैं, इस तरह से हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। हम जो है एल्यूमिनियम क्लोराइड ले सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड ले सकते हैं। दीज आर ऑल द सॉल्ट्स ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। सो लेट्स सी एग्जांपल ऑफ द सेकेंड पार्ट, pH less than 7 means the solution of the salt should be acidic in nature. That is, the salt should be made up of strong acid and weak base. Example, NH4Cl। साथ ही में आपको और भी एग्जाम्पल लिख देते हैं, NH4NO3, उसके बाद CaCl2, AlCl3 etc. are also salts of strong acid and weak base। तो अगर आप अमोनियम क्लोराइड को ले रहे हो तो अमोनियम क्लोराइड जब आप वाटर में ऐड करोगे प्लस वाटर, देन व्हाट इट विल फॉर्म? इट विल फॉर्म NH4OH plus HCl. Now see, NH4OH is a weak base. ये ऑलमोस्ट बहुत कम डिसोसिएट करेगा या ऑलमोस्ट अनडिसोसिएटेड कंडीशन में रहेगा। डिसोसिएट अगर किया भी तो बहुत स्मॉल अमाउंट में वो डिसोसिएट करेगा और OH माइनस आएगा। मैक्सिमम यू कैन कंसिडर दैट इट विल रिमेन अनडिसोसिएटेड ऑलमोस्ट। एंड HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड and it will completely dissociate into H plus ion and Cl minus ion. So the solution will be acidic in nature and its pH value will be less than 7. So this is how we have solved this. Now see, अगर आप इनका जो है ये जो अमोनियम नाइट्रेट
हमने बताया आपको, इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, कैल्शियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये जो है ये इसमें एसिड और बेस कौन कौन है अगर आपको जानने की इच्छा है तो मैं बता दूं आपको, जो NH4NO3 है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड. नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस. कैल्शियम क्लोराइड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl एसिड. HCl एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस. जो आपका AlCl3 है, AlCl3 दिस सॉल्ट इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH3 एंड HCl acid. HCl acid is again a strong acid and aluminum hydroxide is a weak base. यहाँ पे जो हमने जो है strong base और weak acid का जो बाकी salts के example आपके सामने रखा, यहाँ पे K2CO3 is again a combination of strong base and weak acid. Acid कौन सा है? H2CO3 as usual and base कौन है यहाँ पे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. तो NH3PO4 में अगर आप जाओ तो NH3PO4 is a combination of H3PO4 and NaOH. H3PO4 is phosphoric acid which is a weak acid and sodium hydroxide is a strong base. तो इस तरह से जब भी कोई सॉल्ट का इस तरह से आपको पूछेगा solution of the salt has got pH greater than 7 or less than 7, तो आपको समझ लेना है अगर greater than 7 है तो solution बेसिक होना पड़ेगा नेचर में. दैट मीन्स सॉल्ट आपको ऐसे लेना है जो कि वाटर में डिसोसिएट, वाटर में डिसॉल्व होने के बाद जो एसिड और बेस में कन्वर्ट हो वो बेस स्ट्रांग हो और एसिड वीक हो, ताकि बेस कंप्लीटली आयनाइज करे, OH माइनस आयन प्रोड्यूस करे, सॉल्यूशन बेसिक हो जाए और उसका पीएच जो है 7 से ऊपर होगा. और इन केस आपको सॉल्ट ऐसा पूछा है जो कि एसिडिक होगा जिसका सॉल्यूशन, दैट मीन्स वो ऐसा सॉल्ट होगा जो कि स्ट्रांग एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन में बना है और उसका एग्जांपल हमने नीचे दिया और आपको एक्सप्लेन भी कर दिया. सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो ओवर. वी आर गोइंग टू टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. इट इज ए assertion reason टाइप ऑफ क्वेश्चन. हमें ऑप्शन चूज करना है. पहले ऑप्शंस को हम लिख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए, बोथ A and R, मतलब assertion and reason are true and R, reason, is the correct explanation ऑफ ए. असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन ऑप्शन ए में. ऑप्शन बी में है बोथ ए एंड आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. Number C, assertion is true, reason is false. Number D, assertion is false and reason is true. ये आपके 4 ऑप्शंस हैं. अब हमारा assertion क्या है? हमारा असर्शन वाला स्टेटमेंट है ये, जनरली द कैंडल फ्लेम is yellow. And the reason statement is candle flame is yellow due to the presence of unburned carbon particles. So this is our common experience. कैंडल जब भी हम जलाते हैं वो येलो फ्लेम से ही जलते हैं. That means it produces luminous flame. Luminous flame येलो कलर का होता है. और इसका रीजन जो बताया है बिल्कुल सही रीजन बताया है कि ये येलो इसलिए होता है कलर में क्योंकि जो कैंडल फ्लेम है उसमें
अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। जब लाइट ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स के ऊपर गिरते हैं तब वो येलो कलर को स्कैटर करते हैं, दैट इज व्हाई इट शोज येलो कलर। दैट मीन्स व्हाट, येलो कलर अगर फ्लेम शो कर रहा है दैट मीन्स द हाइड्रोकार्बन व्हिच इज प्रेजेंट इन वैक्स, वैक्स क्या है, वैक्स इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन ओनली। सो हाइड्रोकार्बन यहाँ पे वैक्स में जो प्रेजेंट है, जब उसका कंबशन हो रहा है दैट इज नॉट कंप्लीट कंबशन, दैट इज इनकम्प्लीट कंबशन। अगर कंप्लीट कंबशन होता द कलर ऑफ द फ्लेम वुड हैव बीन ब्लू, कलर जो है येलो है, इसका मतलब यही है कि जो फ्लेम का, जो हाइड्रोकार्बन का, वैक्स में जो हाइड्रोकार्बन है उसका जो कंबशन हो रहा है वो कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, और उसमें जो है अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स है जिसके कारण जो है फ्लेम का कलर क्या आ रहा है, येलो आ रहा है। सो यहाँ पे हमें ऑप्शन कौन सा चूज करना है, ऑप्शन ए, जो असर्शन है और रीजन है दोनों सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो आंसर इसमें है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है इट इज द करेक्ट आंसर। सो इसके बाद हम लेते हैं द लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। सॉल्यूशन ए gives pink color when a drop of phenolphthalein indicator is added to it. Solution B gives red color when a drop of methyl orange is added to it. What type of solutions are A and B, and which one of them will have higher pH value? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में बताना चाहूंगी। एसिड बेस इंडिकेटर्स जो कि एसिड बेस टाइट्रेशन में यूज होता है। आपको पता ही एसिड और बेस आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो एसिड और बेस का टाइट्रेशन जब हम करते हैं तब हम ये जो इंडिकेटर्स है जिनको हम बोल रहे हैं कि एसिड बेस इंडिकेटर्स, इनको हम 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप हम ऐड कर देते हैं। ये इंडिकेटर क्या काम करते हैं? इंडिकेटर जो है जब रिएक्शन एसिड और बेस के बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हो चुके होते हैं तो वो जो है हमें वो एंड पॉइंट बता देते हैं। हमें बता देते हैं कि द रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड द बेस हैज बीन कंप्लीटेड। एंड पॉइंट बताने में, एंड पॉइंट दिखाने में, एंड पॉइंट इंडिकेट करने में ये हमें मदद करते हैं। इनको हम इंडिकेटर बोलते हैं। तो 2 इंडिकेटर का यहाँ पे मेंशन हुआ है, एक तो है फिनोप्थलीन इंडिकेटर और एक है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। तो फिनोप्थलीन इंडिकेटर और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज मैं दे दूं। ये जो इंडिकेटर्स है दीज आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, these are complex organic molecules and they are normally weak acid और weak base होते हैं। जो फिनोप्थलीन है वो फिनोप्थलीन को इस फॉर्मूला से सिंपली रिप्रेजेंट किया जाता है। ये फिनोप्थलीन को जो है
इस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है HPH, इससे फिनोल्फथालीन को रिप्रेजेंट किया जाता है, और मिथाइल ऑरेंज को रिप्रेजेंट किया जाता है MEOH से। सो क्लियरली आपको दिख रहा है कि फिनोल्फथालीन इज ए वीक एसिड एंड जो मिथाइल ऑरेंज है इट इज ए वीक बेस। तो इनका जो एक्वा सॉल्यूशन में जब ये डिसोसिएट करते हैं तो डिसोसिएशन थोड़ा सा देख लिया जाए। डिसोसिएशन HPH का डिसोसिएशन से क्या बनता है, H प्लस प्लस PH माइनस। अब ये जो HPH है ये कलरलेस होते हैं, ये कलरलेस होते हैं अनआयोनाइज्ड फॉर्म में। अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ये कलरलेस हैं, पर इनके जो आयन है जैसे कि ये जो PH माइनस आयन है ये कलर्ड है, इसका कलर है पिंक। तो दैट मीन्स इनके आयन्स के कलर होते हैं और इनका अपना अनआयोनाइज्ड फॉर्म में जो है कलर कुछ और होते हैं, किसी का कलर होता है किसी का नहीं है, जैसे कि इसका कोई कलर नहीं है अनआयोनाइज्ड फॉर्म में। ऑन द अदर हैंड अगर आप मिथाइल ऑरेंज को ले लो जिसको MEOH से रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज ए वीक बेस। सो ये जो है डिसोसिएट करते हैं और बनाते हैं Me प्लस प्लस OH माइनस आयन। तो ये जो MEOH है ये येलो होता है कलर में, और जो आपका Me प्लस आयन है ये रेड होता है कलर में। तो देखो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में कुछ कलर होते हैं और आयोनाइज्ड फॉर्म में आयन का कुछ कलर होते हैं। तो इनका रोल क्या है, ये कैसे जो है हमें एंड पॉइंट को बताने में हमें जो है मदद करते हैं वो देख लिया जाए। सपोज कि जो हमें सोल्यूशन ए के बारे में बोला है कि इसके बारे में ये बोला है कि जब इसमें एक ड्रॉप फिनोल्फथालीन ऐड किया जाता है तो पिंक कलर देते हैं। दैट मीन्स जो है ये फिनोल्फथालीन ऐड करने से पिंक कलर देते हैं, मतलब जो सोल्यूशन ए है वो बेसिक होगा नेचर में, क्योंकि जो फिनोल्फथालीन इंडिकेटर है वो एसिड में कलरलेस रहते हैं, बेस में जो है वो पिंक कलर का होता है। और जो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है वो जो है एसिडिक सॉल्यूशन में वो रेड कलर का होते हैं और बेसिक सॉल्यूशन में वो येलो कलर का होते हैं। तो उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम समझ लेते हैं कि ऐसे कैसे। ये जो आपका मैंने आयन में इनका डिसोसिएशन को दिखाया है, एक्चुअली देयर इज ए इक्विलिब्रियम। आपको क्लास 10 स्टूडेंट्स हो आपको इक्विलिब्रियम के बारे में छोटा सा आपको बता देते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या है। अगर मैंने इक्विलिब्रियम दिखाना है तो इस तरह से हमें डबल हेडेड एरो देना पड़ता है, ये इस तरह से इस डायरेक्शन में, एक ये इस तरह से, यहां भी हम उसी तरह से देंगे डबल हेडेड एरो इक्विलिब्रियम को दिखाने के लिए। ये जो है इक्विलिब्रियम में रहते हैं। अब इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम वो स्टेज है जिसमें एक रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में दोनों डायरेक्शन में जो है इक्वल रेट में जब होगा तब उस स्टेज को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगी बिकॉज आपका सिलेबस में इक्विलिब्रियम नहीं है। अगर आप साइंस कंटिन्यू करते हो 11th क्लास में तो आपको जो है इक्विलिब्रियम के बारे में अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस चीज को समझने के लिए कि वाई जो फिनोल्फथालीन है वो बेस में पिंक कलर का हो जाता है, मिथाइल ऑरेंज जो है एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर का होता है, उसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे ये चीज थोड़ा बताना चाहूंगी। अगर सपोज कि फिनोल्फथालीन इंडिकेटर आपने एसिड सॉल्यूशन में ऐड कर दिया तो एसिड सॉल्यूशन में ऐड करने से वो कलरलेस क्यों दिखेगा? बिकॉज ये जो एसिड सॉल्यूशन है दैट प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ H प्लस आयंस। तो H प्लस आयंस अगर ज्यादा नंबर में होंगे तो ये जो इक्विलिब्रियम है ना, बाहर से कोई भी अगर हम चेंज इसमें जो है इंपोज करते हैं तो इक्विलिब्रियम इधर उधर इस डायरेक्शन में मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करेगा कौन सा डायरेक्शन में? अभी जब आप एसिड में जो है डाल दोगे फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन ऐड कर दोगे, इंडिकेटर को ऐड कर दोगे तो ये एसिड सॉल्यूशन में जो है ये लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्विलिब्रियम है ये लेफ्ट हैंड साइड में जो है शिफ्ट कर जाएगा। क्यों? बिकॉज जैसे ही आपने एसिड ऐड कर दिया तो बहुत सारा H प्लस आयन के नंबर इंक्रीज हो गया है। तो H प्लस आयन के नंबर जैसे इंक्रीज हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम अपने आप को रीएडजस्ट करेगा ताकि H प्लस आयन के नंबर जो इंक्रीज हो गया है वो कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए। इसीलिए इक्विलिब्रियम अभी कौन सा डायरेक्शन में शिफ्ट होगा? इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाने का मतलब कलर क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। तो यही वजह है कि एसिड सॉल्यूशन में जो फिनोल्फथालीन है वो कलरलेस होता है। लेकिन अगर आप बेस ऐड कर दोगे तो क्या होगा? बेस विल प्रोड्यूस OH माइनस आयंस और OH माइनस आयंस और H
प्लस आयन के कॉम्बिनेशन में बन जाएगा वाटर, तो H प्लस आयन से कंसंट्रेशन जो है दैट मीन सॉल्यूशन में डिक्रीज होता जाएगा। जैसे आप बेस ऐड करोगे, बेस में से क्या आएगा, वो H माइनस आयन आता जाएगा और वो H माइनस आयन इसके साथ H प्लस के साथ कंबाइन कर जाएगा, तो H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही घटेगा साथ साथ में HPH क्या करेगा, उस चीज को एडजस्ट करने के लिए HPH और ज्यादा अमाउंट में डिसोसिएट होकर के H प्लस आयन को प्रोड्यूस करेगा। दैट मींस इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप क्या देख रहे हो, पीएच माइनस आयन प्रोड्यूस हो रहा है जिसका कलर क्या है, पिंक है। यही वजह है कि एसिड सॉल्यूशन में जो आपका फिनोल्फथालीन है वो कलरलेस होता है और बेसिक सॉल्यूशन में वो जो है पिंक कलर का हो जाता है। बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर का होने का कारण यही है, बेस से OH माइनस आयन आते हैं, OH माइनस आयन इसके साथ कंबाइन करते हैं, इसको एडजस्ट करने के लिए, इसका कंसंट्रेशन को एडजस्ट करने के लिए HPH जो है डिसोसिएट करके H प्लस और PH माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मींस कलर ऑफ द सॉल्यूशन बेस में क्या हो जाएगा, फिनोल्फथालीन का पिंक हो जाएगा। सॉल्यूशन बी में जैसे ही हम मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन बी का कलर क्या हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। दैट मींस सॉल्यूशन बी में जो है हम जब इंडिकेटर ऐड करते हैं तो रेड कलर का हो जाने का मतलब है जो सॉल्यूशन बी है वो एसिडिक है नेचर में। एसिड क्या करते हैं, एसिड जो है H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं, H प्लस आयन जो है वो H माइनस आयन के साथ कंबाइन कर जाएगा, कंबाइन कर जाने से OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता रहेगा और MeOH जो है डिसोसिएट होकर के Me प्लस और OH माइनस आयन में कन्वर्ट होता रहेगा। Me प्लस आयन का कलर क्या है, रेड है। दैट इज वाई हम बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन बी जो है जो मिथाइल ऑरेंज के एक ड्रॉप ऐड करने से रेड हो जा रहा है कलर में, वो एसिडिक होगा नेचर में। वो एसिडिक है तभी वो क्या कर रहा है, H प्लस आयन को प्रोड्यूस कर रहा है और H प्लस आयन बनते ही H प्लस आयन जो जैसे ही वो प्रोड्यूस कर रहा है वो OH माइनस आयन के साथ कंबाइन कर रहा है और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर दे रहा है, जिसके कारण MeOH जो कि मिथाइल ऑरेंज है बहुत ज्यादा डिसोसिएट करने लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, Me प्लस आयन और OH माइनस आयन में कन्वर्ट होता रहेगा। Me प्लस आयन का कलर रेड है इसलिए जो है ये रेड हो जाता है। ये तो एसिडिक सॉल्यूशन में MeOH का कलर जो है रेड हो जाता है, लेकिन अगर बेसिक सॉल्यूशन हो तो MeOH का कलर क्या होगा, मतलब मिथाइल ऑरेंज का कलर बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन में बेस प्रोड्यूसेस OH माइनस आयंस, बेस OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है तो OH माइनस आयन जो है सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा हो जाने से उसको एडजस्ट करने के लिए अभी इक्विलिब्रियम कौन सा डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, लेफ्ट हैंड साइड में वो शिफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में अगर इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है दैट मींस Me प्लस और OH माइनस कंबाइन करता रहेगा, MeOH बनता रहेगा। दैट मींस सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इंडिकेटर का काम ही है कलर चेंज करना और हमें एंड पॉइंट बताना, या तो एसिड या तो बेस है, मतलब मीडियम जैसे एसिडिक या तो बेसिक होगा, इंडिकेटर जो है अपना कलर चेंज करता रहेगा और इस तरह से हमें पता चलेगा कि सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। तो बेसिक एसिडिक तो हम समझ गए, सॉल्यूशन हमारा सॉल्यूशन बी जो है ये क्या होगा, सॉल्यूशन बी विल बी एसिडिक इन नेचर बिकॉज ये मिथाइल ऑरेंज में रेड कलर ले लेते हैं। अब हमें बोल रहा है कि सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर ए एंड बी, ये हमने कर लिया। अब बोल रहा है कि एंड व्हिच वन ऑफ देम विल हैव हायर पीएच वैल्यू, हमें पता है कि जो बेसिस है उनका पीएच वैल्यू 7 से ग्रेटर होता है, तो दैट मींस सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी में से किसका पीएच वैल्यू ज्यादा होगा, सॉल्यूशन ए का पीएच वैल्यू ज्यादा होगा। सो वी राइट हियर सॉल्यूशन ए विल हैव higher pH value. This is how we have solved this question. So आज के लिए यहाँ तक, so फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई विल रिक्वेस्ट यू क्लास 10 स्टूडेंट्स ज्यादा नंबर में इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें सो दैट I get motivated and I make more and more videos for you, and thank you for watching the video.